children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, solids, liquids and gases. Let's learn about what is matter made up of. States of matter, change in states of matter, change in matter, solute, solvent and solution. You can see many things around you which are made up of different materials, but they have two things in common. They occupy space and have weight. Anything that occupies a space and has weight is called matter. The amount of space a thing occupies is called its volume. आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, बट उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उनका वेट होता है. तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका वेट होता है उसे कहते हैं मैटर. और वो कितना अमाउंट ले रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं उसका वॉल्यूम. रिमेंबर, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर हमेशा 3 स्टेट में मिलते हैं आपको. What is matter made up of? Matter is made up of tiny particles called molecules. The molecules of different substances differ from each other. Molecules are made up of still smaller particles called atoms. They are so small that we cannot see them. They can be seen only under a microscope. For example, oxygen gas is made up of many molecules of oxygen. Water is made up of many molecules of hydrogen and oxygen. Matter आपके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें मॉलिक्यूल्स बोला जाता है उनसे बने होते हैं. तो मॉलिक्यूल्स हर डिफरेंट सब्सटेंस के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. मॉलिक्यूल्स आपके बने होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें बोला जाता है एटम से. ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. जैसे आपका ऑक्सीजन जो है वो बना हुआ है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से. वाटर आपका बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल से. States of matter. All things on the earth consist of matter and the matter exists in many forms. The most common states of matters are solid, liquids and gas. अभी आपको मैंने बताया कि matter 3 form में exist करता है. Solid, liquids and gases. Solid. Solids are substances in which the particles are tightly packed. Solids में actually क्या होते हैं कि particles जो होते हैं tightly packed होते हैं. Solids are hard and have a fixed shape. Pen, pencil, book, chair and doll are some examples of solids. When we apply force, some solids can change their shape. Some solids on applying force can be bent or break. If we apply force on an iron bar, it will bend. When we apply more force on a plastic scale, it breaks. अच्छा, ये solid का क्या होता है? इनका fixed shape होता है. जैसे आपके डेली बहुत सारे, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, एक्चुअली आपका क्या एग्जाम्पल एक सॉलिड का. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ सॉलिड जो अपनी शेप चेंज कर देते हैं, जैसे कि कुछ ब्रेक हो जाते हैं, राइट, कुछ बेंड हो जाते हैं अगर हम उनमें फोर्स अप्लाई करते हैं. तो डू यू नो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. डायमंड आपका इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. Liquid. Liquids are substances in which molecules are not tightly packed. They have no fixed shape and can flow. Liquids have definite volume. Liquids like water, oil, milk, etc. do not have a definite shape. They take the shape of the vessel they are poured in. अब liquids आपके वो substances होते हैं जिसमें molecules tightly packed नहीं होते हैं, इनकी fixed shape नहीं होती और ये flow करते हैं. और liquids का but definite volume होता है, जैसे कि आपका oil और आपका milk, water, ये सारे आपके liquids हैं. If we pour some milk into a glass, it will take the shape of the glass. If we pour the same thing into a jug, it will take the shape of the jug. Liquids can flow, so are also called fluids. Liquids cannot be bent or break. अब क्या होता है, लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसका शेप ले लेता है. अगर आप जग में डालेंगे वो जग का शेप ले लेगा, आप कप में डालेंगे तो वो कप का शेप ले लेगा. लिक्विड्स आपके फ्लो करते हैं, इसीलिए लिक्विड्स को बोला जाता है फ्लूइड्स. और लिक्विड्स को ना तो बेंड कर सकते हैं ना ही ब्रेक कर सकते हैं. गैसेस. Gases are substances in which the molecules are very loosely packed. Gases have no definite shape. Molecules in a gas are far apart from each other. They occupy all the available space in a container they are filled in. अब gases आपके वो substance होते हैं जिसमें molecules loosely packed होते हैं. इनका कोई भी definite shape नहीं होता है. गैस के जो molecules हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर चले ही जाते हैं और जो भी इनको जितना भी space available होता है ये सारा का सारा occupy कर लेते हैं. Therefore, gas does not have any definite shape or volume. They can flow easily in all directions. Air and cooking gas are some examples of gases. Air is actually a mixture of gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. अब क्योंकि
आपकी जो गैसेस से फ्लो करते हैं और जितना भी स्पेस मिलता है सारा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इसीलिए इनका ना कोई डेफिनेट शेप होता है ना ही वॉल्यूम होता है, ये सारी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। आपके जैसे एयर है, ये आपका क्या है, गैस का एग्जाम्पल है, और ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गैसेज ऑल्सो कैन नॉट बी बेंड और ब्रेक, गैस को भी ना हम बेंड कर सकते ना ही ब्रेक कर सकते। रिमेंबर, gases like smoke and air spread and occupy all the space they get. This is because the molecules are very far apart and the intermolecular force is very weak. Gases जैसे आपका smoke या air होता है, ये आपके gases के example हैं, ये spread हो जाते हैं और जितना भी space होता है ये occupy कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो molecules के बीच में काफ़ी सारा space होता है, तो intermolecular force जो है काफ़ी weak होता है। Let's recall solid, liquid, gas. ये आपको difference दिया गया है solid, liquid और गैस के। Molecules are tightly packed, definite shape, definite volume. It is generally hard, it doesn't flow. देखिए आप यहाँ पे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं कि टाइटली पैक्ड है, तो इसकी वजह से इनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है और ये जनरली हार्ड होते हैं और फ्लो नहीं करते। लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो टाइटली पैक्ड, नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इट इज़ नॉट हार्ड, इट फ्लोज। अब इसमें देखिए मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं है, इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है क्योंकि आप जिस कंटेनर में इसको डालेंगे लिक्विड को वो उसका शेप ले लेता है, बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ये हार्ड नहीं होते और ये फ्लो करते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स वेरी लूजली पैक्ड, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, इट इज़ नॉट हार्ड, इट ऑल्सो फ्लोज। अब आप मॉलिक्यूल्स देखिए गैसेस के कितने लूजली पैक्ड है ना, तो इनका कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम तो होता ही नहीं है, ये हार्ड नहीं होते हैं बट ये फ्लो करते हैं। Change in states of matter. Water can exist in all the three states, solid, liquid and gas. The state of matter can change from one form to another when we heat or cool it. For example, ice changes to water when it is heated. अब जो आपके 3 states हैं, हम इन्हें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जब हम उन्हें हीट या कूल करते हैं। जैसे कि आइस आपका सॉलिड फॉर्म है, इसको वाटर यानी लिक्विड में चेंज किया जा सकता है, कब, जब हम इसे हीट करते हैं। Matter can change its form by heating or cooling. A liquid changes into a solid when its temperature decreases. Thus, a liquid changes to solid on freezing. A solid changes into a liquid when the temperature is increased. Thus, a solid changes to a liquid on heating. This is called melting. Liquid changes into gas on heating. This is called evaporation. Vapor changes to liquid on cooling. This is called condensation. अब देखिए मैटर जो है अपनी फॉर्म चेंज करता है जब हम उसे हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं। लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, तो लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होता है कब, जब उसे फ्रीज किया जाता है। इसी तरह से जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। इसी तरह से आपके लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होते हैं जब हीट होते हैं तो इवेपोरेशन, और जब वेपर ठंडे होके लिक्विड में चेंज हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Activity time. Keep some ice cream solid in a cup on the table for some time. You will see that it will start melting and after some time it turns to a liquid. Then keep the melted ice cream in the cup in the freezer and close the door of the refrigerator. After some time, open the refrigerator and see what happens. The ice cream in the cup becomes solid again. आप एक आइसक्रीम को रखिए, आइसक्रीम आपकी सॉलिड है, आप टेबल पे रख दीजिए कुछ टाइम के बाद, आप कुछ टाइम बाद देखें क्योंकि मेल्ट होके वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। अब आप इस मेल्टेड आइसक्रीम को फिर से फ्रीज़र में डालेंगे और रेफ्रिजरेटर बंद करेंगे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी आइसक्रीम है फिर से वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। डू यू नो naphthalene balls that are solids directly change to gas? This process is called sublimation. आपने देखा है आपकी मम्मी जब कपड़े स्टोर करती हैं, वुलन कपड़े स्पेशली, तो उनमें नेफ्थलीन बॉल्स डालती हैं। तो वो नेफ्थलीन बॉल्स आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ना वो बड़ी सी एकदम छोटी हो जाती है और कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है। तो एक्चुअली नेफ्थलीन बॉल्स आपकी सॉलिड होती हैं, वो जो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। चेंज इन मैटर, physical change. The changes in which no new substance is formed are called physical changes. Physical changes जिसमें आपका कोई भी नया substance नहीं बनता। Physical change is a reversible change. Melting of a candle, slicing of bread, melting of ice, etc. are some examples of physical change. Physical change आपके generally reversible होते हैं, जैसे कि आपकी कैंडल मेल्ट हो गया या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस है, ये सारे के सारे आपके फिजिकल चेंजेस हैं। Chemical change. Changes in which a new substance is formed are called chemical changes. A chemical change
is an irreversible change. Burning of paper, cooking of vegetables, baking of cake, etc. are some examples of chemical changes. अब chemical change में क्या होता है कि एक नया substance बनता है और ये irreversible change होता है. जैसे burning of paper, paper एक बार जल गया तो वापस आपको वो नहीं मिलेगा. Cooking of vegetables, आपकी vegetable अगर पक गई तो वापस पे raw form में नहीं आएंगी. Activity time. Take some sugar in a spoon, heat it on a gas stove for some time. You will see that sugar turns black as a new substance called charcoal is formed. This charcoal cannot be turned back to sugar, thus it is a chemical change. आपने क्या करना है, एक स्पून में शुगर लेना है, उसको हीट करना है गैस स्टोव पे, बट बी केयरफुल. उसके बाद आप क्या देखेंगे कि शुगर जो है वो ब्लैक कलर के एक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा. एक्चुअली एक नया सब्सटेंस जिसे बोलते हैं चारकोल वो बना है. तो अब ये जो चारकोल बना है आपका जो ब्लैक कलर का, क्या है इससे वापस शुगर बन सकती है? नो. So it is a chemical change. Solute, solvent and solution. Add salt to water and leave it for some time. If you taste this water now, it will taste salty. Similarly, add sugar to warm milk and taste it. Milk will be sweet in taste. Some solids mix easily with liquids. In both the cases, the salt and the sugar mixed with the liquids and got dissolved. Here, the salt and the sugar are termed as the solute. Water and milk in which the solutes are dissolved is called a solvent. The liquid that we get after dissolving solute in a solvent is called a solution. देखिए, आपने देखा होगा कई बार पानी में आप या नींबू पानी में आप सॉल्ट ऐड करते हैं, वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है. इसी तरह से आप गर्म दूध में या पानी में शुगर ऐड करते हैं तो आपके बाद वो टेस्ट मीठा हो जाता है. तो देखिए, जैसे सॉल्ट एंड शुगर हैं, इनको हम बोलते हैं सल्यूट. जो चीज़ें किसी लिक्विड में घुलती हैं वो सल्यूट होती हैं. और आपका सॉल्वेंट जनरली लिक्विड होता है जो इन सल्यूट को अपने आप में मिक्स कराता है. और सल्यूट और सॉल्वेंट से जो मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. जैसे देखिए, आपको सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट आपका सल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, एंड जो सॉल्टी वाटर मिला दैट इज सॉल्यूशन. इसी तरह से शुगर आपका सल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है, और दोनों को मिला के जो मिक्सचर बना स्वीट वाटर दैट इज योर सॉल्यूशन. Let's remember, anything that occupies a space and has weight is called matter. Matter is made up of small particles. Solid, liquid and gas are the three states of matter. कोई भी substance, कोई भी चीज़ जो space occupy करता है और जिसका weight होता है उसे matter बोलते हैं. Matter आपके छोटे छोटे particles से बना होता है और आपके matter की three states होती हैं: solid, liquid and gas. On heating, solid changes into water, it is called melting. Cooling, water changes into ice, it is called freezing. A solid dissolves in a liquid to form a solution. जब आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वाटर में चेंज होता है, इसे कहते हैं मेल्टिंग. और हीटिंग वाटर जो होता है वो आपका स्टीम यानी गैस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इसी तरह से जो कूलिंग वाटर है वो आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है यानी सॉलिड में, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग. और आपका सोल्यूशन कैसे बनता है? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.